यदि किसी फलन स्मॉल एफ एक्स धन सी का अवकलन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो उस कैपिटल एफ ऑफ एक्स का समाकलन स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। जैसा कि हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, वन का समाकलन एक्स का समाकलन एक्स की घात एन का जो समाकलन है वो है एक्स की घात एन धन एक बटे एन धन एक, जब एन का मान ऋण एक नहीं है, एन का मान ऋण एक नहीं है तब एक्स की घात एन का समाकलन होता है एक्स की घात एन धन एक बटे एन धन एक होल प्लस सी। ऋण एक हो जाता है दैट इज ये होगा 1/x, तो 1/x का समाकलन होता है log mod x प्लस सी। समाकलन e की घात x वो हमारे पास है e की घात x धन c। इंटीग्रेशन है sin x इज माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, integration of cos x is sin x whole plus c। Integration of tan x is log mod sec x plus c और minus log mod cos x plus c। Integration of cot x dx is log mod sin x plus c। Integration of sec x is log mod sec x plus tan x whole plus c। और यही होता है हमारे पास log mod 10 pi by 4 plus x by 2। इंटीग्रेशन cosec x is equal to log mod cosec x minus cot x। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x is tan x। Integration of cosec square x is minus cot x plus c। Integration of 1 under root 1 minus x square is sin inverse x plus c। Integration of 1 minus x square dx is minus cos inverse x plus c। Integration of 1/1 plus x square is tan inverse x plus c। Integration of 1/1 plus x square is again given by minus cot inverse x plus c। Integration 1/x root x square minus 1 is sec inverse x plus c। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x root x square minus 1 dx is minus cosec inverse x plus c। Integration of e raised to bar x is e raised to bar x integration of a raised to bar x is a raised to bar x upon log a to the base
E integration of 1 upon x square minus a square is 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a whole plus c. Integration 1 upon a square minus x square is 1 upon 2a log mod a plus x upon a minus x. Integration of 1 upon x square plus a square is 1 upon a tan inverse x upon a. Integration of 1 upon under root a square minus x square is sin inverse x upon a. Integration 1 upon under root x square minus a square is log mod x plus square root of x square minus a square plus c. Integration of square root of x square plus a square dx is log mod x plus square root of x square plus a square plus c. Integration of square root of a square minus x square is x upon 2 under root a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse x upon a. Integration of under root x square plus a square is x by 2 under root x square plus a square plus a square upon 2 log mod x plus square root of x square plus a square dx or whole plus c. Integration of square root of x square minus a square is x upon 2 x square minus a square upon 2 log mod x plus under root x square minus a square plus c. निश्चित समाकलन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि आंशिक भिन्न और तीसरी विधि हमारे पास खंड से समाकलन। खंड से समाकलन फार्मूला मेथड है। अगर मान लीजिए 2 फलन दिए हैं, उनके गुणनफल का समाकलन करना है तो फार्मूला हमारे पास है पहला फलन दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन होल प्लस सी। यहाँ ये जो 2 फलन हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड, उसको लेने का जो तरीका है वो है हमारे पास आइलेट। आइलेट कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास आई है तो वो रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल रिप्रेजेंट कर रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। ए रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन।
और ये ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन। तो इस ऑर्डर में हमको पहला फलन लेना है। यदि मान लीजिए हमारे पास एक बीजगणितीय फलन है और एक त्रिकोणमितीय फलन है, तो पहला फलन हम बीजगणितीय फलन को लेंगे, दूसरा फलन हम त्रिकोणमितीय फलन को लेंगे और इस फार्मूले से उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास है e की घात x, एक फलन दिया हुआ है fx, दूसरा उसका अवकलन दिया हुआ है और बोलता है समाकलन करिए। तो समाकलन के लिए हमारे पास सीधा ही फार्मूला e की घात x fx प्लस सी। अगर मान लीजिए स्मॉल fx जो है उसका समाकलन हमने किया और वो है कैपिटल F ऑफ x प्लस सी, तब सीमा a से b में इस fx का निश्चित समाकलन यदि लिया जाए तो वो होगा हमारे पास f ऑफ x प्लस सी पर लिमिट a से b। और जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे अपर लिमिट और फिर रखेंगे लोअर लिमिट, दैट इज ये होगा हमारे पास f ऑफ b प्लस सी माइनस f ऑफ a प्लस सी, और ये c से c कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a। निश्चित समाकलन a से b fx dx जो है वो इक्वल होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, सपोज करिए कि हमारे पास दिया हुआ कर्व है y इज इक्वल टू fx और सीमा हमने रखी हुई है x बराबर a से x बराबर b तक और x एक्सिस। यदि इनसे घिरा हुआ रीजन निकालना है, ये क्षेत्र को ज्ञात करना है, तो हमारे पास होगा निश्चित समाकलन। ये एक क्षेत्र को अगर हमको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, x एक्सिस x अक्ष इस कर्व x बराबर a और x बराबर b से घिरा हुआ क्षेत्र निकालना है, तो इसका तरीका होगा हमारे पास निश्चित समाकलन a से b fx dx। अगर y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है हमको, और जो दिया हुआ कर्व है वो कुछ ऐसा है, x बराबर g ऑफ y और y बराबर c और y बराबर d, y अक्ष और कर्व से घिरा हुआ रीजन हमको निकालना है। तो इस क्षेत्र को ज्ञात करने का जो तरीका होगा वो होगा निश्चित समाकलन c से d g ऑफ y dy। निश्चित समाकलन की पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है जिसका हमने निश्चित समाकलन लिया a से b सीमा के अंदर, तो ये जो समाकलन है x के सापेक्ष हो रहा है, यदि हम देखें तो ये बराबर होगा a से b f ऑफ t dt के बराबर। तो निश्चित समाकलन अपने वेरिएबल से स्वतंत्र होता है, x की जगह आप t लिख दीजिए या t की जगह x लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। निश्चित समाकलन एक निश्चित वैल्यू होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास a से b fx dx बराबर a टू b f ऑफ t dt। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a टू b fx dx इज माइनस b टू a fx dx। यदि सीमाएं बदलेंगे तो समाकलन का चिन्ह बदल जाएगा, साइन जो है वैल्यू वही है, समाकलन वही है, लेकिन चिन्ह जो है वो ऋण का आ जाएगा। a to b fx dx is given by a to c fx dx plus c to d fx dx। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास समाकलन a से b fx dx बराबर होता है हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 0 to a fx dx is given by 0 to a f of a minus x dx।
0 to 2a fx dx is given by 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2e minus x dx. Seventh property, integral limit 0 to 2a fx dx is given by 2 times 0 to a f of x dx, जबकि f of 2a minus x इज इक्वल टू हो जाता है f of x. f of 2a minus x is f of x, that integration is 2 times 0 to a fx dx, और वही हमारे पास हो जाता है समाकलन 0 यदि f of 2a minus x बराबर हो माइनस f of x. लास्ट प्रॉपर्टी माइनस a to a fx dx is given by 2 times 0 to a fx dx, जबकि f of माइनस एक्स f of x होता है, मतलब फलन जो है वो सम फलन है, इवन फंक्शन है, तो समाकलन डबल हो जाता है, इंटीग्रेशन लिमिट हाफ हो जाती है 0 से a. वही समाकलन 0 हो जाएगा यदि f of माइनस एक्स बराबर हो f of x के, विथ माइनस f of x के बराबर हो, तब हमारे पास समाकलन जो है निश्चित समाकलन की वैल्यू शून्य हो जाएगी यदि दिया हुआ फलन विषम फलन है तब. अवकल समीकरण में दो चीजें हैं, कोटि और घात. तो किसी अवकल समीकरण की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने मान लीजिए कि लिखा हुआ है dy बटे डी एक्स धन y बराबर 3. तो ये एक अवकल समीकरण है, इसमें कोटि अगर चाहिए तो हम देख रहे हैं y का एक बार अवकलन है, इसलिए इसकी कोटि जो है वो 1 है, और अगर इस पूरे की घात देखें तो वो भी 1 है, इसलिए इसकी घात भी 1 है. यदि मान लीजिए हमारे पास होता d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन y इज इक्वल टू 3, ऐसा लिखा हुआ है, तब इस अवकल समीकरण की कोटि 2 है और इस पूरे की घात 1 है, तो यहाँ पर घात भी 1 आ गई. लेकिन मान लीजिए हमारे पास है d3y अपॉन dx क्यूब, इस पे घात 2 लिख दी मैंने, और यहाँ लिख दिया आपके लिए साइन y डैश इज इक्वल टू 3. तो हम बोलेंगे कि इस अवकल समीकरण की कोटि वो तो 3 है, दैट इज कोटि कहने का मतलब है y का मैक्सिमम कितनी बार आपने अवकलन किया है वो तो कोटि है. लेकिन ये जो हमारे पास अवकल समीकरण दिख रहा है ये बहुपद नहीं बनाता है, साइन के साथ डेरिवेटिव आ गया तो इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं है, दैट इज अगर आपके पास dy अपॉन dx के सामने साइन कॉस आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, या चरघातांकी फलन की घात में हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए, किसी फलन का अवकलन आ जाए, तो फिर उसकी कोटि तो हम डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन जो घात है वो परिभाषित नहीं होगी. अवकल समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं. पहला है चरों का पृथक्करण विधि, दूसरा है समघात फलन. यदि समघात फलन है तो हमें y बराबर vx रखना है, और dy बटे dx जो है वो हो जाएगा हमारे पास पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन. तो ये प्रतिस्थापन हम रखेंगे और दिए हुए अवकल समीकरण को हल करेंगे, जबकि दिया हुआ अवकल समीकरण जो है वो समघात अवकल समीकरण है. तो रैखिक अवकल समीकरण 2 प्रकार के होते हैं. पहला हमारे पास है y में रैखिक अवकल समीकरण. अगर y में रैखिक अवकल समीकरण है तो वो होता है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q जैसा.
जहाँ पी और क्यू केवल एक्स के फलन है। और इसमें यदि हमको चाहिए तो समाकलन गुणांक हम निकालेंगे पहले, वो होता है पी डी एक्स। और इस समीकरण का हल चाहिए तो हल होता है हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, समाकलन के अंदर आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल डी एक्स प्लस सी। एक्स में रेखिक अवकल समीकरण है तो उसका प्रकार होगा हमारे पास डी एक्स बटे डी वाई धन पी एक्स बराबर क्यू जैसा, जहाँ पी और क्यू केवल y के फलन होंगे। यहाँ भी वही प्रोसेस हमको लगाना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालेंगे e की घात पी डी एक्स, हल करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको हल निकालना है तो हल होगा हमारे पास x गुणित इंटीग्रेटिंग फैक्टर u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल डी वाई और प्लस सी। वह राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण हो सदिश कहलाता है, और वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो अदिश कहलाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर ए बी एक लाइन सेगमेंट जिसकी लंबाई हमने ले ली 5 सेंटीमीटर और इसमें एक डायरेक्शन भी दे दिया ए से बी की तरफ, तो इसको हम नाम देते सदिश। तो ये जो हमारे पास सदिश है इसको लिखने का तरीका हमारे पास ए बी सदिश, इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो ए है और अंतिम बिंदु बी है। इसी को लिखने का एक तरीका और भी है कि स्मॉल लेटर लिखा हमने और ऊपर सदिश का चिन्ह लगा दिया। सदिशों के प्रकार, वह सदिश जिसका मापांक 1 इकाई के बराबर हो उसे हम एकक सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है हमारे पास ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ए सदिश को उसके मापांक से भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा एकक सदिश यूनिट वेक्टर। वही हमारे पास सदिश लिया हमने, एक से ज़्यादा सदिश ले लिए लेकिन इनका प्रारंभिक बिंदु समान है तो ये कहलाता है हमारे पास सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश ऐसे दो सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। मान लीजिए हमने ये दो सदिश लिए, ए सदिश और बी सदिश, इनका परिमाण भी समान है और इनकी दिशाएं भी समान हैं, तो ये कहलाते हैं समान सदिश या बराबर सदिश। इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सदिश बराबर बी सदिश। किसी सदिश के बारे में हमने बात करना है, ये ए सदिश है तो इसका जो ऋणात्मक सदिश होगा उसका परिमाण ए सदिश के परिमाण के बराबर ही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ए सदिश है, ये ऋण ए सदिश है, दोनों के परिमाण समान है परंतु दिशाएं अलग अलग हैं। वही हमारे पास है शून्य सदिश। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी और सदिश जो है इसका प्रारंभिक बिंदु ए है, बी पर जाते हैं, बी से सी पर, सी से डी पर और वापस डी से ए पर आ गए, तो जो सदिश होगा उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, तो इसे हम कहते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, ए सदिश या शून्य सदिश। सदिशों का योग नियम, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, इसमें हमारे पास ए बी सदिश और बी सी सदिश यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक नया सदिश होगा और वो होगा ए सी सदिश। सपोज करिए कि ए बी सदिश ए सदिश है, बी सी सदिश बी सदिश है और ए सी सदिश सी सदिश है, तब हमारे पास ए सदिश धन बी सदिश बराबर होगा सी सदिश। वही समानांतर चतुर्भुज का नियम है हमारे पास कि सपोज ए बी सी डी
एक समानांतर चतुर्भुज है और इसकी दो आसन भुजाएं ए सदिश और बी सदिश को रिप्रेजेंट करती है। जो विकर्ण होगा रिजल्टेंट कहलाता है और इस रिजल्टेंट को अगर हम देंगे तो ए सी सदिश होगा हमारे पास ए सदिश धन बी सदिश। वही मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ सदिश ए सदिश है, इसमें हमने स्केलर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नया सदिश होगा 2a सदिश जो दिए हुए सदिश के समानांतर होगा, लेकिन इसका मापांक इसका जो परिमाण है दिए हुए सदिश के परिमाण का दुगना हो जाएगा। अगर 3 से गुणा करेंगे तो परिमाण 3 गुना हो जाएगा लेकिन होगा समानांतर। अगर ऋण से गुणा किया तो हम जान चुके हैं परिमाण तो समान होगा लेकिन जो हमारे पास डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं वो विपरीत हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमने कहा ये बी सदिश है जो दिए हुए सदिश ए सदिश के समानांतर है तो डेफिनेटली बी सदिश जो है वो लैम्डा इंटू ए सदिश के बराबर होगा। यदि लैम्डा धन का है तो जो ए का दिशा होगी वही बी सदिश की दिशा होगी, और अगर लैम्डा ऋण का है तो ए और बी की दिशाएं विपरीत होगी। यहाँ ध्यान देने की बात है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए कि संख्या रेखा है हमारे पास 0 1 2 3 -1 2 3 ऐसा हमारे पास है और ये ए बी सी डी से रिप्रेजेंटेड है। यहाँ ए डस बी डस सी डस से मैंने अंकों को रिप्रेजेंट कर दिया। तो चूंकि हम जानते हैं कि भाई ए से बी तक की दूरी 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस 1 ही है और ये एक्स एक्सिस हम मान लें हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज रेखा, तो इसके लिए हमने एक इकाई सदिश यहाँ पर डिफाइन कर दिया ए बी सदिश बराबर आई कैप। एक्स अक्ष के लिए इकाई सदिश आई कैप। तब ए सी सदिश यदि हमको चाहिए तो ए सी सदिश जो है इस सदिश का मापांक का दुगना हो गया, इसलिए ये हो जाएगा 2i कैप। अगर ए डी सदिश चाहिए तो वो हो जाएगा हमारे पास 3i कैप। वही अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ए सदिश ए डैश सदिश चाहिए तो वो हो जाएगा -i कैप। ए बी डैश सदिश चाहिए तो अपोजिट डायरेक्शन में दैट्स बाई माइनस, मैग्नीट्यूड डबल है 2i कैप। ए सी डैश सदिश चाहिए तो होगा -3i कैप। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई बिंदु हमने लिया हुआ है जिसका निर्देशांक है कॉमा बी। तब हम डेफिनेट जान चुके कि इस पर एक लंब रेखा खींच दें तो ये जो ए बी है ये ए के बराबर है, जो ओ बी है वो ए के बराबर है और जो ए बी है वो बी के बराबर वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हमारे पास लंबवत रेखा है हमने डाली हुई, तो डेफिनेटली ये जो मापांक है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है तो ओ बी सदिश जो होगा वो हो जाएगा ए आई कैप। और वही बी ए सदिश अगर हमें चाहिए तो वो हो जाएगा हमारे पास बी जे कैप। वाई अक्ष के लिए हम जो एकक सदिश लेते हैं वो जे कैप। तो ये चूंकि इसका मापांक भी है इसका परिमाण भी है तो ये बी ए सदिश हो जाएगा बी जे कैप। सपोज हमने इसको ज्वाइन कर लिया तो सदिश की भाषा में हम समझ गए ये एक त्रिभुज है, इसलिए योग नियम लग गया और वो हो गया ओ ए सदिश ओ बी सदिश धन बी ए सदिश बराबर ओ ए सदिश। मतलब ओ ए सदिश हम जानते नहीं यहाँ पर, ओ बी सदिश जानते हैं ए आई कैप और प्लस बी जे कैप। तो यहाँ मान लीजिए
ये ओरिजिन है हमारे पास, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर जो दूरी हमने ली है, ए तक की दूरी सपोज करिए ए है, ये बिंदु बी है, इसकी दूरी मूल बिंदु से बी दूरी है, यहाँ सपोज करिए सी दूरी है। तो डेफिनेटली इस ए का निर्देशांक होगा ए 0 0, बी का निर्देशांक होगा 0 B 0, सी का निर्देशांक होगा 0 0 C। ऐसे ही अगर हम बिंदु डी बोलते हैं तो डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा 0। अगर ई बिंदु लिया तो ये होगा 0 कॉमा बी कॉमा सी, एफ ए कॉमा 0 कॉमा सी, और अगर ये जी लिया ये होगा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर इसको ओ नाम दे देते हैं तो ओ ए सदिश हम जान चुके, ओ ए सदिश ए आई कैप, ओ बी सदिश जो है वो बी जे कैप। अगर इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक सदिश और बन जाता है, जिसको हमने अभी निकाल लिया था। ये रिजल्टेंट है, इन दो सदिशों का योग ही होगा, दैट इज ओ डी सदिश बराबर हो जाएगा हमारे पास ए आई कैप धन बी जे कैप। यहीं से हमको एक रिजल्ट मिलता है कि अगर हम इस ओ जी सदिश को ज्वाइन कर लें, ओ जी को भी ज्वाइन कर लें, तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन गया, और उस त्रिभुज का नाम है हमारे पास ओ डी जी, और इस त्रिभुज में है ओ जी सदिश बराबर ओ डी सदिश धन डी जी सदिश। ओ डी सदिश निकाल चुके हैं, ए आई कैप धन बी जी कैप, और डी जी सदिश जो है वो जेड एक्सेस के रिस्पेक्ट में है। जितना ओ सी सदिश है उतना ही डी जी सदिश भी होगा, दैट इज होगा सी के कैप। तो यदि इस बिंदु के निर्देशांक ए बी और सी है तो ये जो ओ जी सदिश है ये होगा ए आई कैप धन बी जे कैप धन सी के कैप। ओ जी सदिश में इन ए बी और सी को हम इनके अदिश घटक कहते हैं। ये जो ए बी सी है ये अदिश घटक कहलाते हैं, और वही अगर हमारे पास ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप ले लें तो इनको हम सदिश घटक कहते हैं, दिए हुए सदिश के सदिश घटक। और यदि मान लीजिए ओ जी का परिमाण ले ले, ओ जी की दूरी निकालना है तो इसका परिमाण होगा ओ से जी तक की दूरी, मतलब वो होता है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस 0 स्क्वायर बी माइनस 0 स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ओवर रूट। मान लीजिए दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक हमारे पास x1 y1 z1, और बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है x2 y2 और z2। तब ए और बी को यदि ज्वाइन करें तो ए बी सदिश होता है हमारे पास बी का स्थिति सदिश ऋण ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश ऋण ए का स्थिति सदिश, दैट इज ये हमारे पास होगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 की कैप। अब चूंकि हम पहले से जानते हैं इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, मतलब इस सदिश का मापांक वो हो जाएगा हमारे पास इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब इनके जो अदिश घटक हैं इनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल, y2 माइनस y1 और सिमिलरली z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। मान लीजिए हमें कुछ ऐसा दिया हुआ, ए जो है उसका स्थिति सदिश ए सदिश है, बी का स्थिति सदिश बी सदिश है, एक बिंदु सी है जो इस ए बी को ज्वाइन करने पर बना हुआ जो रेखाखंड है उसको m अनुपात n में विभाजित करता है। तब हमको इस सी का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो सी का स्थिति सदिश अगर हमको चाहिए तो वो होगा m इंटू बी वैक्टर धन n इंटू ए वैक्टर
और बटे में आ जाएगा m धन n। अब चूंकि ये बिंदु C जो है ए बी रेखाखंड के बीच में अंतर विभाजित करता है, तो यहाँ धन चिन्ह, अगर वही बाह्य विभाजित करता तो हमारे पास r सदिश होता एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन m माइनस n। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सदिश हमारे पास कुछ ऐसा है और C जो सदिश हमारे पास होगा वो इसको आगे बढ़ाने पर हमको पॉइंट मिलेगा। ये A सदिश है, ये B सदिश है, ये R सदिश है और ये पूरा जो लेंथ है हमारे पास वो हमारे पास जो है वो m है और इतना जो है वो n है। m/n में यहाँ भी डिवाइड कर रहा है लेकिन बाह्य विभाजित करता है, तो जो फार्मूला होगा वो एन बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन m माइनस n। अगर मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु होता, रेखाखंड का मध्य बिंदु होता, तब फार्मूला हमारे पास हो जाएगा मध्य बिंदु है मतलब जितना MA है उतना ही MB है, तो डेफिनेटली 1:1 में ही काट रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो M और N की जगह 1:1 आ जाएगा और चूंकि ये अंतर विभाजित करता है तो ऊपर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो R सदिश हो जाएगा हमारे पास A सदिश धन B सदिश बटे 1 धन 1 मतलब 2। A सदिश शून्य सदिश है या B सदिश शून्य सदिश है या दोनों ही सदिश शून्य सदिश है, तब इनका जो अदिश गुणनफल होता है वो शून्य होता है। परंतु यदि A सदिश शून्य सदिश नहीं है तथा B सदिश भी शून्य सदिश नहीं है, तब इन दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट दिया जाता है A सदिश का मापांक B सदिश का मापांक इनटू कॉस थीटा, जहां थीटा इन दो सदिशों के बीच का कोण है और वह कोण 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का हो सकता है। A और B के बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास A सदिश डॉट B सदिश बटे A का मापांक गुणित B का मापांक, B सदिश का मापांक। अब थीटा जो है 0 और 180 डिग्री के बीच में है, तो कुछ केसेस हम बना सकते हैं। जैसे थीटा 0 डिग्री हो गया तो ये क्या बनाने लगेगा हमारे पास, कि अगर थीटा 0 डिग्री है दैट इज A सदिश और B सदिश जो है वो एक दूसरे के समानांतर है। A सदिश समानांतर है B सदिश के। अगर दो सदिश एक दूसरे के समानांतर है मतलब एक जो सदिश है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, उसमें अदिश का गुणा करेंगे तो दूसरा सदिश आ जाएगा। अगर दो सदिश एक दूसरे के समानांतर है मतलब थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 होता है। कॉस 0 डिग्री जो है वो हमारे पास होता है 1। अब कॉस 0 1 है मतलब होगा हमारे पास A वैक्टर डॉट B वैक्टर बराबर A का मापांक गुणित सदिश B का मापांक। अब ऐसे दो सदिश जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो वो डेफिनेटली खुद A सदिश और A सदिश हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास A सदिश डॉट A सदिश हो जाएगा A सदिश के मापांक का वर्ग। तो अब हम जानते हैं ऐसे सदिश वो आई कैप डॉट आई कैप भी हो सकता है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही हमारे पास जे कैप डॉट जे कैप वो भी होगा 1 और के कैप डॉट के कैप वो भी हो जाएगा हमारे पास 1। तो थीटा 0 डिग्री है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जनरेट होगी और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री है दैट इज ये जो लेम्डा है ये धन का होगा, A और B सदिश के जो डायरेक्शन है वो सेम हो। लेकिन वही अगर थीटा 180 डिग्री होता तब भी ये सदिश समानांतर ही है।
मतलब एक जो सदिश है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, और यहाँ जो लेमडा है वो नेगेटिव है। दोनों सदिश जो है उनके डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि cos 180 डिग्री -1 होता है, दैट्स वाई ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर वो होगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर। यहाँ से ऐसे दो सदिश हम देखें तो एक ए सदिश है, दूसरा माइनस ए सदिश है, इनके बीच 180 डिग्री एंगल होता है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है आई कैप डॉट आई कैप विथ माइनस इज -1, वही होगा हमारे पास जे कैप डॉट माइनस जे कैप, और वही होगा हमारे पास के कैप डॉट माइनस के कैप। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा हमारे पास -1। मान लीजिए थीटा हमारे पास 90 डिग्री होता तो डेफिनेटली ये जो दो सदिश है ये एक दूसरे पर लंबवत है, और यदि ये दो लंबवत हैं तो हम जानते हैं cos 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। cos 90 डिग्री 0 होता है, दैट इज ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर जो है वो 0 हो जाने वाला है। ये 0 है, ये प्रोडक्ट पूरा 0 हो गया, तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बराबर 0। यहाँ से ऐसे दो सदिश जिनके बीच का कोण 90 डिग्री है वो डेफिनेटली हम जानते हैं आई कैप एंड जी कैप। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री, तो आई कैप डॉट जी कैप बराबर 0। वही वाई और जेड अक्ष लेंगे तो उनके बीच का कोण भी 90 ही होता है, वो भी 0 होगा। और ऐसे ही हमारे पास जेड अक्ष जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस जो है उनके बीच का कोण भी 90 अंश होता है, तो वो डॉट प्रोडक्ट भी 0 ही होगा। यदि मान लीजिए कि ए सदिश A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप धन C1 के कैप है, और बी सदिश जो है वो A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप है, तब बस cos थीटा इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, दैट मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और वही होगा हमारे पास A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर इनको सेपरेटली अलग अलग बांट दें तो cos थीटा A1 बटे ये पूरा होगा L1 के बराबर, A2 के बटे में लिखेंगे तो होगा L2 M1 M2 प्लस N1 N2, जहाँ L1 M1 N1 और L2 M2 N2 जो है वो दिक कोसाइन है। यदि दिक कोसाइन दिए आपको तो आप तीसरा फार्मूला लगा लें, यदि दिक अनुपात दिए हैं दूसरा फार्मूला लगा लें, अगर सदिश दिए हुए हैं तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और आसानी से दो सदिशों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। मान लीजिए ए सदिश शून्य सदिश है या बी सदिश शून्य सदिश है, तब इन दो सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य सदिश होगा। लेकिन यदि ए सदिश और बी सदिश शून्येतर सदिश है तब इनका जो सदिश गुणनफल होगा वो होगा ए का मापांक सदिश ए का परिमाण गुणित सदिश बी का परिमाण गुणित साइन थीटा, और पूरे के साथ आएगा एन कैप, एक एकक सदिश जो दिए हुए दोनों सदिश ए सदिश और बी सदिश पर लंबवत है। तो यहाँ पर हमारे पास है ये ए सदिश ये बी सदिश, इनके बीच का कोण थीटा ही है, थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री के बीच में ही है। लेकिन ये जो हमारे पास एन कैप है ये एक ऐसा सदिश है जो दोनों ही सदिश पर लंबवत है। कुछ ऐसा है, बनाने का तरीका केवल हमारे पास प्लेन ही है तो कुछ हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन एन कैप जो है वो ए सदिश पर भी लंबवत है और बी सदिश पर भी लंबवत है। यहाँ से हम देख सकते हैं यदि इसका मापांक ले लें तो ए सदिश और बी सदिश का मापांक, क्योंकि ये भी धन है ये भी धन का है, 0 से 180 डिग्री में साइन भी धन का होता है, तो ये सभी धन के हैं। मापांक लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एन कैप
एकक सदिश है, इसका मापांक 1 हो जाएगा। ये होगा हमारे पास a का मापांक गुणित b का मापांक सदिश b का मापांक गुणित साइन थीटा। यहाँ से हमको मिलता है साइन थीटा बराबर दो सदिशों a सदिश और b सदिश का सदिश गुणनफल पूरे का मापांक बटे सदिश a का मापांक गुणित सदिश b का मापांक। अब यहाँ से हम ध्यान से देखें यदि तो ये जो राशियाँ हैं ये सब अदिश है और साथ में एन कैप जो लिखा है वो सदिश है। तो चूंकि ये अदिश है तो हमने मान लिया कि ये ए का मापांक बी का मापांक और साइन थीटा बराबर लेमडा है। तो ये जो ए सदिश गुणित क्रॉस बी सदिश है ये हो जाएगा लेमडा इंटू एन कैप। मतलब ए सदिश क्रॉस बी सदिश जो है इनका सदिश गुणनफल वो समानांतर हो जाएगा एन कैप के। और इसलिए हमको यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है कि चूंकि एन कैप ए और बी दोनों पर लंबवत है इसलिए ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है जो कि एन सदिश के समानांतर है वो भी ए और बी पर लंबवत होगा। अर्थात ए सदिश गुणित बी सदिश अगर हमने लिया सदिश गुणनफल लिया तो वो ए पर भी लंबवत है और ए सदिश सदिश गुणनफल बी सदिश बी पर भी लंबवत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हमने नोट कर लेना है। यदि मान लीजिए थीटा हमारे पास 0 डिग्री होता तो हमने पहले भी बात कर लिए कि ये दोनों सदिश समानांतर होंगे। थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री हम जानते हैं 0 होता है। दैट्स वाई ये जो हमारे पास इनका सदिश गुणनफल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये शून्य सदिश हो जाएगा। अब शून्य सदिश हो जाएगा तो हम जानते हैं कि ए सदिश और ए सदिश के बीच का कोण तो 0 ही डिग्री होता है इसलिए इनका जो सदिश गुणनफल होगा वो शून्य होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप शून्य सदिश है। वही जे कैप क्रॉस जे कैप वो भी शून्य सदिश है और के कैप क्रॉस के कैप भी शून्य सदिश है। ऐसे ही अगर थीटा 180 डिग्री होता तब भी सदिश समानांतर है। साइन 180 फिर भी 0 ही होता है। अब 0 यदि है हमारे पास तो यहाँ भी ए सदिश गुणित बी सदिश जो है वो शून्य सदिश ही होगा। और यदि ये शून्य सदिश आ गया तो हम देखें यदि तो ए सदिश और माइनस ए सदिश इनके बीच का कोण जो है 180 डिग्री है इसलिए ये कार्टेशियन इनका जो सदिश गुणनफल है वो होगा शून्य सदिश। यहाँ से हम बोल सकते हैं आई कैप क्रॉस माइनस ऑफ आई कैप शून्य सदिश है। वही जे कैप क्रॉस माइनस जे कैप वो भी शून्य सदिश है और के कैप क्रॉस माइनस के कैप वो भी शून्य सदिश। मान लीजिए थीटा 90 डिग्री होता तो हम पहले ही बता चुके हैं कि दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत है। अब लंबवत यदि है तो साइन 90 होता है हमारे पास 1 साइन 90 1 हो जाता है। अब साइन 90 1 यदि है तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू एन कैप। तो ऐसे दो सदिश जिनके बीच का कोण 90 डिग्री है वो है आई कैप और जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप यदि हम करते हैं तो वो होगा हमारे पास आई कैप का मापांक 1 है जे कैप का मापांक वो भी 1 है साइन 90 डिग्री वो भी 1 है तो बचेगा केवल एन कैप। तो जो आई और जे पर लंबवत है वो है जेड एक्सिस दैट इज एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो लंबवत सदिश है वो हमारे पास है खुद जेड अक्ष। और जेड अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर जो है वो है हमारे पास की कैप। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं आई कैप क्रॉस जी कैप बराबर की कैप। वही अगर हमने जी कैप क्रॉस आई कैप किया तो चूंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो तो हमारे पास है
लेकिन बी क्रॉस ए यदि डिफाइन करेंगे तो वो होता है माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि हमने इनका क्रम बदला तो चिन्ह बदल जाता है। दैट्स वी जे कैप क्रॉस आई कैप जो है वो होगा माइनस ऑफ के कैप। आई क्रॉस जे करेंगे के कैप आएगा, लेकिन जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो माइनस के कैप आएगा। वही अगर हमने यहाँ पर किया होता जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर होता है हमारे पास आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप वो होता है जे कैप, लेकिन क्रम बदला के कैप क्रॉस जे कैप तो हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप वो हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। इस ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप यदि हमें चाहिए तो प्रक्षेप ज्ञात करने का तरीका है ए सदिश डॉट बी सदिश बटे बी का मापांक। वही अगर मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी दो आसन्न भुजाएं दे रखी है हमें, एक ए सदिश है दूसरी बी सदिश है। बोलता है इसका क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होगा हमारे पास हाफ ऑफ ए सदिश बी सदिश का सदिश गुणनफल और उसका पूरे का मापांक। वही अगर मान लीजिए हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी दो आसन्न भुजाएं दे रखी है एडजेसेंट साइड से, और उनके लिए सदिश दिए हुए ए सदिश और बी सदिश, तो इसका क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल वो हो जाता है हमारे पास ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल और पूरे का मापांक। मान लीजिए ए सदिश दिया है A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और बी सदिश दिया हुआ आपके लिए A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तब यदि इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, जो इनके अदिश घटक है उनका संगत गुणा करके जोड़ दीजिए तो आपके पास हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। लेकिन यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, सदिश गुणनफल चाहिए, तो वो होता है हमारे पास सारणिक के अंदर आई कैप जे कैप की कैप। पहली रो में आएगा आपके पास A1 B1 C1 और दूसरी रो में आ जाएगा A2 B2 C2। तो आप इस सारणिक से आसानी से दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ एंगल बनाते हुए जा रही है, और वो एंगल है अल्फा बीटा गैमा। अल्फा बीटा गैमा कोण बना रही है, तो इन अल्फा बीटा गैमा कोण को हम बोलते हैं दिक् कोण। इनको नाम दिया जाता है दिक् कोण। दिक् कोण अल्फा बीटा गैमा। वही इनके लिए अगर कॉस की वैल्यू ले ली जाए तो वो कहलाता है दिक् कोसाइन, दिक् कोज्या। दिक् कोज्या एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा। इन दिक् कोसाइन के जो समानांतर नंबर होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है दिक् अनुपात। ABC को हम नाम देते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात है A, B और C। तो यदि हमको ABC दिए हैं और एलिमेंट ज्ञात करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है A बटे करनी के अंदर A वर्ग धन B वर्ग धन C वर्ग। वही अगर हमारे पास कॉस बीटा चाहिए तो होता है B बटे करनी के अंदर A वर्ग धन B वर्ग धन C वर्ग।
और सिमिलरली कॉस गेमा होता है सी बटे करनी के अंदर ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग। लेकिन हम जानते हैं कि अगर रेखा धन एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा बना रही है तो ऋण के साथ भी एक कोण बना रही है, और वो है हमारे पास पाई माइनस अल्फा। वाई अक्ष के साथ पाई माइनस बीटा और जेड अक्ष के साथ पाई माइनस गैमा, तो ये भी दिक कोण ही कहलाएंगे। आप चूंकि कॉस 180 माइनस थीटा लगाएंगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, दैट्स वाई यहाँ जो चिन्ह आता है वो धन ऋण भी हो सकता है। यहाँ जो चिन्ह है वो धन का भी और ऋण का भी। अब यहाँ से हमको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए हम इनको वर्ग करके जोड़ लें तो एल वर्ग धन एम वर्ग धन एन वर्ग जो है वो हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर। कोई रेखा है जो एक दिए हुए बिंदु से जा रही है जिसका स्थिति सदिश ए सदिश है और एक दिए हुए सदिश के समानांतर है, तब इस रेखा का सदिश समीकरण आर सदिश बराबर होता है ए सदिश धन लैम्डा इंटू बी सदिश। वही अगर इस बिंदु के बारे में अगर हमें पता हो कि ये जो ए बिंदु है इसके निर्देशांक x1 y1 z1 है तथा ये जो बी सदिश है ये ए आई कैप धन बी जे कैप धन सी के कैप, तब इस रेखा का अदिश समीकरण x माइनस x1 बटे y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c होता है। वही वह रेखा जो दो दिए हुए बिंदु से जा रही है जिसके स्थिति सदिश ए सदिश व बी सदिश है, उसका सदिश समीकरण आर सदिश बराबर ए सदिश धन लैम्डा इंटू बी सदिश माइनस ए सदिश होता है। और यदि इसके निर्देशांक x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु x2 y2 z2 है तो इसका जो अदिश समीकरण होगा कार्तीय रूप वो हो जाएगा x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। मान लीजिए दो रेखाएं हैं हमारे पास, आर वेक्टर बराबर ए सदिश धन लैम्डा इंटू बी सदिश, तो यहाँ a1 b1 कर देता हूँ मैं, और आर सदिश बराबर a2 सदिश धन म्यू इंटू b2 सदिश। तो हमें ज्ञात करना है इन दो रेखाओं के बीच का कोण। तो दो रेखाओं के बीच का कोण उन सदिशों के बीच का कोण होता है जिनके समानांतर वो रेखाएं होती है, दैट इज b1 b2 के बीच का कोण ही रेखा के बीच का कोण होता है। अतः अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो कॉस थीटा बराबर होगा b1 सदिश डॉट b2 सदिश बटे b1 का मापांक b2 सदिश का मापांक। चूँकि दो रेखाओं के बीच का कोण यदि एक न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण भी होगा, जैसे कि एक 30 डिग्री है तो दूसरा 150 डिग्री होगा, तो हम केवल निकालेंगे 30 डिग्री, और इसलिए 30 डिग्री जब निकालेंगे तो कॉस तो धन का ही होगा, इसलिए यहाँ लगा रहे हम मापांक। अब यदि मान लीजिए b1 सदिश जो है वो है हमारे पास a1 i कैप धन b1 j कैप धन c1 k कैप, और b2 सदिश है हमारे पास a2 i कैप धन b2 j कैप धन c2 k कैप। तो ये जो कॉस थीटा है ये बराबर हो जाएगा हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और होल इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर इनको हम अलग अलग बांट दें और सॉल्व कर लें यही हो जाएगा हमारे पास L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 का मापांक कि दो रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री है
0 डिग्री है मतलब दो सदिश एक दूसरे के समानांतर है, b1 b2 सदिश समानांतर है, और ये सपोज करिए पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो दो सदिश समानांतर है मतलब लाइन भी एक दूसरे के समानांतर है, रेखाएं भी एक दूसरे के समानांतर है। अब चूंकि दो सदिश एक दूसरे के समानांतर है तो हम जानते हैं b2 सदिश बराबर लैम्डा इंटू b1 सदिश होगा। यहाँ से हमारे पास होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यहाँ से होगा l1 बटे l2 बराबर m1 बटे m2 और बराबर n1 बटे n2। अब हम ये भी जानते हैं कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो इन सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री है, तो इनका जो सदिश गुणनफल है वो शून्य सदिश होगा। वही अगर 0 डिग्री की जगह 180 डिग्री भी हम बोलते हैं तब भी यही सारी बातें होंगी, सदिश समानांतर होंगे, रेखाएं समानांतर होगी और सारे केसेस हमारे पास होंगे। अगर थीटा 90 डिग्री है दैट मीन्स दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है, रेखाएं लंबवत है मतलब वो सदिश भी एक दूसरे के लंबवत है। दो सदिश b1 वेक्टर और b2 वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत है। cos 90 वो होगा हमारे पास शून्य के बराबर। cos 90 शून्य है मतलब जो अंश की वैल्यू है वो सब शून्य होगी, मतलब हमारे पास होगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका योगफल 0 होगा, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 ये भी हमको शून्य ही देगा। मान लीजिए दो रेखाएं L1 तथा L2, हमसे बोलता है कि इन दो के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करने का हमारे पास एक आसान सा फार्मूला है, वो है a2 सदिश माइनस a1 सदिश डॉट b1 सदिश क्रॉस b2 सदिश और पूरे के बटे में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इस पूरे का मापांक, और चूंकि दूरी है तो वो हमेशा धन की ही होगी इसलिए पूरे का मापांक।